Assalamu alaikum, BSN. Are you there? Please guide if you are able to listen me so that we can proceed towards the today's topic. All of you are present. Please ensure so that we may start the lecture. Okay. So सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको. उसके बाद जो है जी आज we are going to start the nutrition chapter which is diet therapy in kidney diseases. Diet therapy in the diseases of kidney and urinary tract. So we will study the diseases of the kidneys and the dietary management, that how can we manage these diseases through our diet. And I must say, as far as all the diseases we have studied, this chapter totally the kidney diseases depends upon the diet therapy, the management of the kidney diseases and the management of the diseases of the urinary tract is 100% depend on the diet which we are going to take. Because for kidney diseases we would not recommend a very high potency medication or allopathy medication. No doubt it is recommended, but along with that the management of the diet is highly recommended, which lead the patient towards the cure of the disease. So this is the very important one, and all of you are present and listening me. Okay. So there are a number of basically diseases which comes under the kidney diseases. Like you are familiar with the nephritis, with the renal failure, which can be acute or either chronic. And then the kidney stones is one of the common diseases in the Pakistan. And then gout, which is also the common one. And then anuria. Anuria is the disease which means little output of the urine, no, very little or even no output of the urine. So these are the one of the few diseases which are related to the kidney, our renal system. So if there will be any disturbance in the system, if there will be any disorder in the system, we may suffer from the kidney diseases. And first of all, we must know the symptoms of the disease, the characteristic feature of the disease. Only then we can go towards the diet management of the disease. So if you know, if you don't know that what is the disease all about and what are the features of the disease, what are the symptoms or the causes of the disease, what are the factors which are responsible for the disease, we will not move towards the dietary management of the disease. So starting with the first disease of the kidney disorder, which is nephritis. So nephritis is divided into two types, type 1 nephritis and type 2 nephritis. Definitely when we have the two different types, it means the cause of the disease is the different, the symptoms of the disease is different, and definitely then the treatment will also be different. So what is basically type 1 nephritis? This type is also called as diffuse nephritis, glomerulonephritis, inflammatory bowel disease. So all these three are the same name for the type 1 nephritis. And this disease is more common in children as compared to older patients. So children and young adults, they suffer from this disease, and the cause is the bacterial infection, and the bacteria which is responsible for this disease is streptococcus bacteria. So there will be a bacterial infection which affects the kidney or the
nephrons of the kidney, then what will be the symptom is the renal blood flow and the glomerular filtrate volume will be reduced. Then the urine also contains blood, albumin, water electrolytes, urea, and other waste products. So it means waste products are retained in our blood and the tissues, because kidney is the filter plant of your body. Kidney used to remove the toxic waste products from our body. So if there is any damage in the nephrons or in the kidney, then what will happen? Definitely all these waste products will be retained in our blood and the tissue. So the blood urea and the non-nitro NTN means non-nitrogenous products, they also rise, and the plasma protein concentration also falls in our body. So these are the basically symptoms of the nephritis one, because when we know the symptoms of the disease, only then we can study the which foods are allowed in this disease. So if the protein plasma protein concentration falls, and if there is retention of the blood urea or nitrogenous waste products in our body, or other protein products in our body, then it means that we should reduce the protein content in our diet. प्रोटीन हम ज़्यादा नहीं ले सकते अगर ऑलरेडी नेफ्राइटिस वन में जो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर already they are started to accumulate in our body, then how can we increase the protein intake? So it means in nephritis 1 we will decrease the protein intake. Now the next another type of the nephritis is nephritis 2. This is not caused by the any infection. Basically, the first one was caused by the bacterial streptococcal infection, and this type of nephritis is also called as the chronic parenchymatous nephritis. So it is basically affecting the cells of the nephrons, and this disease is not limited to the children or younger people. People of all ages are able to be affected by this disease. So there is no specific group which can affect from this disease, and there is no history of the kidney or urinary tract infection. इसमें कोई infection नहीं होता. नेफ्राइटिस 1 में infection होता है बस इसमें, बट इस डिजीज में कोई इन्फेक्शन नहीं होता. अब इसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है कि कैसे आपको पता चलेगा कि नेफ्राइटिस 2 हो गया पेशेंट को, तो द वेरी फर्स्ट इंडिकेटर of the disease is albuminuria. Albuminuria means the loss of albumin from our body in the form of urine. कि अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा पास आउट हो रही है प्रोटीन, तो इसका मतलब है ये symbolize कर रही है नेफ्राइटिस 2 को. And when there will be loss of the albumin from body, it means that the person is also suffering from edema. There is low serum albumin levels in the patient, and edema develops, and glomerular changes in type 2 nephritis. They are increased. I mean that the adequate blood flow is increased, and as the renal blood flow is deficient, the urine volume is reduced. So in this disease, the urine volume is also reduced. The urine also contains large quantities of albumin, and blood test also show the increase in the level of the chloride. So in this disease, इसमें क्या है कि हमारी बॉडी से एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, यूरिन में एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अगर हम जब ब्लड टेस्ट किए हैं तो क्लोराइड के लेवल्स जो हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा रेस कर रहे हैं, बिकॉज यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, यूरिन की कंसंट्रेशन हो गई है. इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में
इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से सॉल्ट्स, क्लोराइड्स के जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जी, कोलेस्ट्रॉल एंड मॉडरेट इंक्रीज्ड इन द यूरिया एंड NPN का मतलब है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। NPN मीन्स नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। जाहिर है कि नाइट्रोजन का बॉडी में एक सोर्स तो प्रोटीन है ना, इसके अलावा जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो भी तो उसका सोर्स है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का मतलब ये है कि ऐसी नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन से नहीं आ रही बल्कि उसका सोर्स कोई और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो टाइप 2 नेफ्राइटिस में हमारी बॉडी से एल्ब्यूमिन निकल गया है, यूरिन में एल्ब्यूमिन के लेवल्स बहुत हाई हैं, बॉडी में लो एल्ब्यूमिन है, और जो यूरिन का वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो गया है, क्लोराइड्स के लेवल बढ़ गए हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं टाइप 2 नेफ्राइटिस के, ठीक है। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 नेफ्राइटिस के, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इनकी जो है जी मैनेजमेंट क्या होगी, कौन कौन सी डाइट देंगे, कितनी कैलोरीज देंगे। सबसे पहले तो ये हमेशा मैंने बताया है कि जो पेशेंट है उसमें हमेशा जो कैलोरीज हैं वो कम हो जाएंगी, जाहिर है वो नॉर्मल लोगों जितनी नहीं होगी, ठीक है। तो टाइप 1 नेफ्राइटिस में भी हमारी कैलोरीज कम हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है और बॉडी का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, डिस्टर्ब हो गया है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलने। तो फिर हम कैसे ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा खाने का मतलब है ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हम अपनी कैलोरीज को, पेशेंट की कैलोरीज को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि नेफ्राइटिस 1 के पेशेंट को हमने जो कैलोरीज देनी है वो है 1700 किलो कैलोरीज, 1700। तो पेशेंट को हम 1700 किलो कैलोरीज दे रहे हैं मेल्स पेशेंट्स को, एंड इन फीमेल्स द कैलोरी विल बी रिड्यूस टू 1500 किलो कैलोरीज। तो सबसे पहले नेफ्राइटिस में जो मैनेजमेंट है उसमें हमने कैलोरीज को कम कर दिया है, और प्लस ये है कि वैसे भी 10% जो है हमें कैलोरीज कम करनी है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट रेस्ट पे है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो लोग गुजारते हैं उनकी कैलोरीज को हमें वैसे भी 10% कम करना चाहिए। तो नेफ्राइटिस 1 की जो कैलोरीज है हमने याद रखना है कि मेल्स के लिए they are reduced to 1700 kilocalories, and for females the calories are reduced to 1500 kilocalories. नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन्स, कि प्रोटीन की अमाउंट में कुछ चेंज आएगा कि पेशेंट को प्रोटीन कितनी देनी है। तो येस, द इनटेक ऑफ द प्रोटीन शुड आल्सो बी रिड्यूस टू द मिनिमम। कम से कम हमने पेशेंट को प्रोटीन देनी है, क्योंकि बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्लड यूरिया के लेवल्स हैं, यूरिया इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से यूरिया बन रहा है ना, तो यूरिया भी बॉडी में जमा हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन के हैं, नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, वो भी जमा हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने प्रोटीन को बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। So only a 30 gram of the protein is required, and that is only required to maintain the nitrogen equilibrium, because के बॉडी का जो नाइट्रोजन लेवल है हमने उसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, मेंटेन करना है कि जो इनपुट नाइट्रोजन की है वो आउटपुट के बराबर हो। सिर्फ इस वजह से हमने 30 ग्राम जो है प्रोटीन दैट इज रिकमेंडेड। इसके बाद फैट्स हैं, फैट्स हमें मॉडरेट देनी है, नॉर्मल देनी है, ठीक है। 50 से 70 ग्राम्स पर डे हम दे सकते हैं। फैट्स का सच इतना रोल नहीं है कि हम उसको रोक दें। नेक्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट्स नॉर्मल हैं, प्रोटीन्स बिल्कुल बंद हैं, मेन जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट विल बी carbohydrates. So major source of energy will be carbohydrates. तो दैट्स वाई हम इसका लेवल जो है वो हाई रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम नहीं करना है।
सो नेक्स्ट थिंग इज विटामिन मिनरल्स, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? विटामिन इनटेक शुड बी एडिक्वेट, क्योंकि विटामिन जो हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है विटामिन की जो रेगुलेशन है दैट शुड बी नोटेड कि हमने इसका इनटेक कितना, हमने इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी देनी है। तो 1 मल्टीविटामिन टैबलेट इज रिकमेंडेड एंड दैट इज इनफ फॉर द पेशेंट, कि पूरे दिन में आप एक मल्टीविटामिन टैबलेट दे दो तो वो बहुत है। एंड द सॉल्ट कंटेंट मीन्स सोडियम और जो क्लोराइड का कंटेंट है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि क्लोराइड के लेवल जैसे बढ़ रहे हैं किडनी डिजीजेज में, तो इस वजह से हमने जो है ना मिनरल्स की जो इनटेक है वो हमने डिपेंड करता है पेशेंट के ब्लड टेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि इस पर क्लोराइड के लेवल्स बढ़ रहे हैं तो इस वजह से इनटेक ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सॉल्ट इज नॉट अलाउड, इट विल नॉट परमिटेड, कि हमने सॉल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर क्लोराइड लेवल बढ़ रहे हैं तो सॉल्ट इनटेक तो रिड्यूस कर दोगे ना, ठीक है। हमने नाइट्रोजन सिर्फ उतना देना है, प्रोटीन सिर्फ उतनी देनी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। कार्बोहाइड्रेट्स नेफ्राइटिस 1 में मेजर सोर्स है, प्रोटीन इज वेरी मिनिमम and fat is moderate. So the diet therapy for the nephritis 1 is high carbohydrates, low proteins, and moderate fats. And what about the total calories? They are reduced to 1700 in males and 1500 in females. Very important thing is the fluid intake. Fluids, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड जो निकलने हैं उसको जो चीज़ कंट्रोल करी है वो है आपकी किडनीज। तो जो वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है यूरिन में, ठीक है, उसके अलावा हमने 100 ml जो है ना मिनिमम 100 ml जो है हमने फ्लूइड लाजमी लेना है, ठीक है। तो बल्कि ये 100 ml नहीं है, 1000 ml जो है ना, 1000 ml फ्लूइड हमने लाजमी लेना है, ठीक है। और 100 ml फ्लूइड जो है ना वो थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू स्वेटिंग, थ्रू प्रेस्पिरेशन हमारी बॉडी से डेली निकल जाता है। तो हमने मेंटेन करना है बेसिकली फ्लूइड इनटेक की, द फ्लूइड विच हैज़ बीन lost from our body in the form of perspiration or sweating, so we have to compensate that fluid. So the minimum water intake will be 1000 milliliter, का मतलब ये है कि 1 लीटर। तो किडनी पेशेंट को, जो नेफ्राइटिस 1 का पेशेंट है, उसको हमने एक दिन में 1 लीटर पानी लाजमी देना है, प्लस 400 to 600 ml of the water which has been lost in the form of urine. तो साथ में हमने जो है ना उसको 400 ml अपना है जो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकल रहा है, जिसका मतलब है टोटल फ्लूइड विच कैन बी गिवन टू द नेफ्राइटिस 1 पेशेंट विल बी 1400 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1400 ml जो है या 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर पानी हमने लाजमी जो है वो किडनी पेशेंट को देना है। So the diet should be low in proteins and sodium and high in carbohydrates. ये हमारा dietary objective है for the patient who is suffering from nephritis 1, ठीक है। तो fluid intake is normally restricted because जो 1000 ml fluid है वो कोई खास ज़्यादा नहीं है, 1 लीटर पानी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा fluid intake भी काफ़ी कम है। So for the nephritis 1, this is the डाइटरी मैनेजमेंट। अच्छा, किडनी डिजीजेस में जाहिर है कि किडनी की पेन होगी, ये सिर्फ ये नहीं है कि जब हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं हमें सिर्फ ये तभी पता चल रहा है। डेफिनेटली देयर विल बी द पेन इन द लोअर एब्डोमिनल पार्ट और एट द साइड ऑफ योर एब्डोमेन, ठीक है। किडनीज में जाहिर है आपके
वन और बोथ साइड्स पे आपको पेन फील होगी, तो फिर ही ऐसा है ना कि आप टेस्ट करवाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो अक्सर साथ में वॉमिटिंग वगैरह भी ऐसे लोगों को इवन होती है कि पेन भी होती है और वॉमिटिंग भी होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है या जो नेफ्राइटिस वन है, उसमें कोई पेन होगी किडनी में तो फिर ही जाके टेस्ट करवाओगे ना। ऐसे थोड़ी हम टेस्ट करवा लेंगे। तो जाहिर है कि वो तो बाद में टेस्ट में पता चलेगा ना कि बॉडी में क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, ओडिमा है कि नहीं है, वो तो बात की बात है। पहले तो आपने डाइट जो है पहले तो पेन होगी तो फिर ही है, तो डेफिनेटली इसमें किडनी की पेन भी होगी। अभी कुछ जो फूड स्टफ्स लिखे हैं ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी वैल्यू कितनी है, बट ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, प्रोटीन्स नहीं देनी है, फैट्स नॉर्मल हैं, सॉल्ट्स नहीं देने हैं, फ्लूइड ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये डाइटरी मैनेजमेंट हमने लाजमी करनी है। अब है जी दूसरी जो है क्लास नेफ्राइटिस की, टाइप 2 नेफ्राइटिस। आज थोड़ा सा ज़रा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि दैट यू ऑल नो कि रोज़ा है, पूरा दिन गुजारना है। अगर अभी थोड़ी स्पीड मार दी तो पूरा दिन जो है वो निकलना मुश्किल हो जाना है मुझसे। इस वजह से आई एम अ बिट स्लो in my voice as well as in wordings also. So today I'm a bit slow, but I hope कि अगर सुन रहे हो सब तो that is enough. Otherwise I can talk louder अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो जी नेफ्राइटिस 2 की तरफ हम आ जाते हैं। नेफ्राइटिस 2 का जो मेजर सिम्टम था कि एक्सट्रीम एल्ब्यूमिनूरिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिनूरिया। इसका मतलब ये है कि बॉडी से एल्ब्यूमिन की एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। And albumin is one of the protein which is responsible for maintenance of the osmotic pressure of your body. So albumin हमारी बॉडी का osmotic pressure मेंटेन कर रही है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ओडीमा होता है। तो नेफ्राइटिस 2 में अगर एल्ब्यूमिन का लॉस बहुत ज़्यादा है तो जाहिर है ओडीमा भी होगा, ठीक है। अब इसमें यूरिया और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसकी रिटेंशन हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत नॉर्मल ही है। इसमें जो मेजर है कि एल्ब्यूमिन का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एल्ब्यूमिन का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारी डाइट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारी डाइट का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन इज़ अ प्रोटीन। तो हमने अपना प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। सो इन नेफ्राइटिस 2, नेफ्राइटिस 1 और 2 में देखो फ़र्क डाइटरी मैनेजमेंट में ये है कि इन नेफ्राइटिस 1 वी आर नॉट गिविंग एनी प्रोटीन टू द पेशेंट। प्रोटीन is restricted in nephritis 1, but in nephritis 2 large amount of protein should be given in our diet, यानी कि डेली 100 से 120 ग्राम्स तक हम प्रोटीन, 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन कम नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमने देनी है पेशेंट को। नेफ्राइटिस 1 में हम सिर्फ 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज अलाउड एंड इन नेफ्राइटिस 2 100 to 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट। सो हमने नेफ्राइटिस 2 में क्या किया है कि प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर दिया है। सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक देन इट मीन्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द टोटल किलो कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन बढ़ रही है तो टोटल किलो कैलोरीज भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे मेल्स में होगी 2000 किलो कैलोरी अलाउ और फीमेल्स में होगी 1700 किलो कैलोरीज अलाउ, ठीक है जी। और नेफ्राइटिस 1 में क्या था अगर किसी को याद हो, नेफ्राइटिस 1 में मेल्स में 1700 किलो कैलोरीज थी और फीमेल्स में 1500 किलो कैलोरीज थी। तो इसमें हमारी कैलोरीज बढ़ गई हैं, मेल्स में 2000 किलो कैलोरीज और फीमेल्स में 1700 किलो कैलोरीज हम देंगे पेशेंट्स को, ठीक है। और प्रोटीन जो है 10 से 20 ग्राम बॉडी से निकल रही है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, कि डिजीज़ कितनी सिवियर है।
तो इस वजह से क्या है कि टू मेक अप द लॉस ऑफ द सीरम एल्ब्यूमिन वी विल इंक्रीज द इनटेक ऑफ द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब एल्ब्यूमिन कहाँ से आएगी? ज़ाहिर है जो हमारी गुड क्वालिटी प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जो एनिमल प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये हम ज़्यादा पेशेंट को देंगे, ठीक है। और ये हम इतना ज़्यादा देंगे कि प्रोटीन जो है वो डेली 100 से 120 ग्राम हमारी बॉडी को मिले, ठीक है। तो इस वजह से हमने नेफ्राइटिस 2 में प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर देना है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि कैलोरी इंक्रीज हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट्स तो मेजर हमें जो डाइटरी सोर्स है, जो हमारा मेजर डाइटरी इनटेक है, जो एनर्जी का सोर्स है, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स ही रहेगा, ठीक है। और फैट्स भी हम इसमें मॉडरेट देंगे, उतने ही देंगे जितने नेफ्राइटिस 1 में दे रहे थे, यानी कि 70 ग्राम्स। और इसमें भी हमने कोशिश करनी है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना वो हम दे दें, ठीक है। क्योंकि जैसे कि सीसम ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, ठीक है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो नेफ्राइटिस 2 में क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, इस वजह से हमने नेफ्राइटिस 2 के पेशेंट्स को क्या करना है कि हमने वो फैट्स देने हैं जो कि ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। तो जी अब नेफ्राइटिस 2 में हमने प्रोटीन ज़्यादा दी, फैट्स मॉडरेट दिए, और हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तो देने ही हैं, क्योंकि वो हमारे मेन एनर्जी का सोर्स है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी पेशेंट को दिए। अब इसमें डाइट चार्ट तुम लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी को कोई कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जब पता चल गया कि कौन सी चीज़ कितनी देनी है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है डाइट चार्ट खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि नेफ्राइटिस 2 का अगर डाइट चार्ट आ जाए तो हमने फिश, मीट, एग, ये चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। और 1 का आ जाए तो बिल्कुल प्रोटीन नहीं डालनी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हो, सीरियल्स डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल नहीं हम डाल सकते। और प्लस ये हम लिखेंगे कि नो सॉल्ट शुड बी एडेड ड्यूरिंग कुकिंग डाइट चार्ट में, तो क्योंकि हमने सॉल्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। और किडनी डिजीजेस के जितने भी डाइट चार्ट होंगे उसके नीचे हम लिखेंगे कि फ्लूइड इनटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1000 to 1400 ml, कि हमारा जो फ्लूइड का इनटेक है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। एक तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये आप चार्ट के एंड पे लिखोगे, और दूसरा आप नोट बना के ना ये आप लिखोगे कि जो है आपका फ्लूइड का भी जो इनटेक है ना वो कम। हाँ जी, क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं कि एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। यस बिल्कुल, एल्ब्यूमिन हमारे प्लाज्मा की प्रोटीन है। परमानेंट सोल्यूशन यही है इनका कि अब देखो इन्फेक्शन जो हो रहा है तो ज़ाहिर है साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेडिसिन भी दे रहे हैं और डाइटरी मैनेजमेंट भी दे रहे हैं, दोनों चीज़ें हम पेशेंट को दे रहे हैं। जैसे ही इफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट गेट्स इम्प्रूव्ड तो ज़ाहिर अपनी डाइट को आप फिर मैनेज मॉडरेट डाइट की तरफ ले आओगे ना, नॉर्मल डाइट की तरफ ले आओगे। फिर हमारी पेशेंट डाइट तो नहीं ना रहेगी। व्हेन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट गेट इम्प्रूव्ड, जैसे ही मरीज की हालत बेहतर होगी तो आप क्या करोगे, आप अपनी डाइट को चेंज कर दोगे। ज़ाहिर है नॉर्मल डाइट बंदा ले सकता है, लेकिन ये है कि किडनी पेशेंट्स में अगर आपके टेस्ट वगैरह नॉर्मल आ गए हैं तो फिर आप नॉर्मल डाइट ले सकते हो, लेकिन जो हमारे पास इसकी एहतियातें हैं वो हम इसको मतलब कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो अगर आपके टेस्ट वगैरह बिल्कुल ओके हैं तो फिर आप नॉर्मल डाइट की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज थोड़ा बहुत आप मतलब कि हमारी डाइट रहेगी कि जैसे प्रोटीन्स अगर कम रखनी है तो थोड़ी कम रखें, या पानी का इंटेक अगर कम रखना है तो थोड़ा कम रखें, ठीक है। तो ये है कि डिजीज़ ज़ाहिर है 3 to 6 मंथ्स तो हर डिजीज़ ले जाती है, ठीक है। तो किडनी डिजीज में भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन विल बी फाइन और इन द 1 वीक यू विल बी फाइन, बिकॉज जब डिजीज आपके नेफ्रॉन्स को इफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी हाई लेवल पे है। तो
बिकॉज ये है कि डिजीज का पता ही चलता तब है कि जब आपको कोई सिम्टम्स अपेयर हो। तो ऐसी बहुत सी डिजीजेज हैं जिनके सिम्टम्स अपेयर होने में 1 से 3 माह भी लगते हैं। तो अगर तो आपका जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं वैसे उनका सडन ऑनसेट होता है, ठीक है, जैसे कि नेफ्राइटिस 1 है। लेकिन जैसे नेफ्राइटिस 2 वगैरह है, अगर क्रॉनिक होती जा रही है, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना फ़ौरन से नहीं पता चलता है। अगर आपको डिजीज़ का जो है वो डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कोई ख़ास इतना मसला नहीं है। तो इसमें परमानेंट सोल्यूशन जो है मैनेज डाइट थेरेपी एंड प्लस द ओरल या जो भी मेडिकेशंस हैं, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, because we will not say that we can manage the disease totally with the dietary therapy। ऐसा नहीं है कि हम डिजीज को सिर्फ डाइट थेरेपी से ही मैनेज कर लेंगे, जो साथ में इसकी मेडिकेशन है हमने वो भी फॉलो करनी है। लेकिन मेडिकेशन का फायदा तब तक नहीं है जब तक हम साथ में इसकी डाइट थेरेपी प्रॉपर नहीं कर रहे, है ना। अगर आपको प्रोटीन मना है और आप प्रोटीन भी डाइट में लेते जा रहे हो और किडनी की दवाइयां भी खाते जा रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजें जो हैं दे गो साइड बाय साइड, ठीक है जी। अब इसमें भी विटामिन आर इम्पॉर्टेंट कि एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले लें तो मसला हल हो जाएगा। प्लस जो सोडियम क्लोराइड इज नॉट अलाउड, ठीक है, इन नेफ्राइटिस 2 एज वेल, बिकॉज सॉल्ट की भी, अगर सोडियम की भी रिटेंशन हो जाएगी, ऑलरेडी नेफ्राइटिस 2 में ओडीमा हो रहा है, सो अगर सॉल्ट की भी रिटेंशन होगी तो ओडीमा बहुत ज़्यादा और आपका ख़राब हो जाएगा, बिगड़ सकता है। इस वजह से हमने नेफ्राइटिस 2 में भी सॉल्ट को अलाउ नहीं करना, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और जो फ्लूइड इनटेक है वो उतना ही है जितना 1 में था, यानी कि 1000 ml प्लस द फ्लूइड विच हैज बीन लॉस्ट इन द यूरिन, ठीक है। तो हमारा वही 1400 ml मैक्सिमम फ्लूइड इनटेक होगा। सो हाई प्रोटीन, high carbohydrate, salt free and moderate fat diet is recommended for the patients who are suffering from nephritis 2, ठीक है। हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड सॉल्ट फ्री डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ नेफ्राइटिस 2। ये हमने याद रखना है। जब ये याद होगा तो फिर हम डाइट चार्ट खुद ही बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि डाइट चार्ट को कोई कॉपी पेस्ट और याद वगैरह करना है, ठीक है। हाँ जी, हम आगे आगे डिजीजेस पढ़ते हैं। निम्रा का क्वेश्चन आया है, तो उसमें ये है कि वाटर इनटेक जो है ना वो सिर्फ कुछ डिजीजेस हैं किडनी की जिसमें पानी का इनटेक आपने ज्यादा करना है। सारी डिजीजेस में, बिकॉज देयर इज अ मिसकंसेप्शन that if someone is suffering from kidney disease तो he or she must increase the intake of water। ऐसा सारी किडनी डिजीजेस में नहीं है। किडनी डिजीजेस में आम कॉन्सेप्ट है कि पानी ज़्यादा पियो, गुर्दों के लिए पानी ज़्यादा पियो। ये जो पानी ज़्यादा पियो है ना, ये तब तक है जब तक आपको किडनी की कोई बीमारी नहीं है, ताकि आपकी जो है ना किडनीज सही अच्छी वॉश होती रहे, ठीक है, अच्छी तरह वॉश होती रहे, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालती रहे, ये तब तक है पानी ज़्यादा पियो। सो वंस देयर इज सर्टन डैमेज इन योर किडनी, अगर कोई डैमेज हो गया किडनी में, कोई रीनल फेलियर हो गया है, फिर बताओ पानी कैसे ज़्यादा बंदा पी सकता है। पानी को फिल्टर जिसने करना है, जब आपका फिल्ट्रेशन पंप ही अगर ख़राब हो गया है तो पानी ज़्यादा डालते जाने से तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होता जाएगा। तो इस वजह से जो किडनी डिजीजेज हैं उसमें देयर आर सर्टन डिजीजेज इन विच वी रिकमेंड द हाई इनटेक ऑफ वाटर, जैसे कि किडनी स्टोन्स हैं, उसमें भी अगर आप डिपेंड करता है कि आपके स्टोन की लोकेशन क्या है, स्टोन का साइज क्या है। अगर स्टोन जो है वो यूरिटर वगैरह में फंसा हुआ है, ठीक है, और उसके कॉर्नर्स वाला स्टोन है, तो फिर तो पानी ज़्यादा पीने से बल्कि उसमें पेन होती है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है तो पेशेंट को पेन ज़्यादा होती है। हाँ, अगर बहुत छोटे से स्टोन्स हैं और वो किडनी स्टोन्स हैं, यूरिटर में ट्यूब में नहीं फंसे हुए, तो
फिर आपको ये है कि पानी ज़्यादा पियो ताकि छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो खुद ही निकल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर स्टोन का साइज ज़्यादा है, ठीक है, और वो फिर आपको वाटर इनटेक उसमें इतना हेल्प नहीं करता, बल्कि वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो किडनी डिजीज़ में वी हैव सर्टन टाइप ऑफ डिजीजेस, कुछ में हम पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कुछ में हम पानी का इंटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। आगे कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें यहाँ तो हमने कहा है कि 1400 ml पानी पेशेंट पी ले। किडनी की कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें हम कहते हैं सिर्फ 500 ml पेशेंट पानी पी ले, ठीक है, क्योंकि वाटर फिल्टर ही नहीं जब हो रहा तो आप जो है इंक्रीज करोगे तो उतनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा पेन बढ़ेगी, ठीक है। तो देर इज सर्टन डिजीजेस in which we intake increase the intake and in which we reduce the intake, ठीक है। तो अब जो किडनी स्टोन्स हैं उनसे बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि पहले ही पानी ज़्यादा पियो, कोई किडनी डिजीजेज हो ही ना, ठीक है ना। अभी आजकल में जैसे रमज़ान है, वाटर इनटेक कम हुआ है, तो वी मस्ट इंश्योर कि जो हमारे पास टाइम है मिलता है अफ्तारी से सुबह सहरी तक, उसमें हम पानी की कमी थोड़ी पूरी कर दें, क्योंकि सीज़न भी ऐसा है, गर्मी है, स्वेटिंग वगैरह से पानी का लॉस हो सकता है, लेकिन क्योंकि घर में हैं तो इससे थोड़े बचे हैं। तो हमने वाटर इनटेक जो है ना वो अपना पूरा रखना है। जी, अब है अगली डिजीज जो हमारी किडनी की, विच इज एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। इन एक्यूट रीनल फेलियर accumulation of urea and other waste products takes place in the blood and tissues। अब देखो जो एक्यूट रीनल फेलियर है, जाहिर है कि आपका जो रीनल सिस्टम है वो उसमें कोई डैमेज आया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी में यूरिया और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जमा हो गए। यूरिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? प्रोटीन का। अब अंडरस्टूड है कि इसमें प्रोटीन तो पेशेंट नहीं ले सकता। A reduction in the endogenous waste products and in the breakdown of the tissue proteins can be achieved by giving the glucose and emulsified fat in 1 liter of water equivalent to the water which is lost from our body through perspiration or sweating। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो हमारा एक्यूट रीनल फेलियर है उसमें यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एंडोजीनियस यानी कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने कम करना है, और प्लस हमने ये भी करना है कि बॉडी की अपनी जो टिश्यू की प्रोटीन्स है ना, अपनी जो हमारी प्रोटीन्स है ना, उनकी ब्रेकडाउन भी ना हो। बिकॉज अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में ज़्यादा हैं तो हम तो प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपनी जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं, टिश्यू प्रोटीन्स हैं, कहीं उनको ना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लग जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को पहले ही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट डाइट दे देंगे ताकि जो बॉडी का कैलोरी इनटेक है ना वो पूरा होता रहे, बॉडी को अपनी प्रोटीन्स जो है ना वो यूज़ करने की ज़रूरत ही ना आए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक स्पेशलाइज जो है ना डाइट है विच इज़ रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर। और डाइट क्या है? डाइट इज द mixture of the glucose and emulsified fat in 1 liter of water, ठीक है। तो हमने पहले से ही जो हाइड्रोलाइज फैट है, इमल्सिफाइड फैट है और जो ग्लूकोज है 1 लीटर में उसका सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। ये हमने फिर जो डाइट है पेशेंट को देनी है, ठीक है। ये अब बुल एटॉल, एटॉल जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है बुल और उसके कुलीग्स, ठीक है। बुल एटॉल का मतलब बुल एंड उसकी पूरी टीम यानी कि उसके कुलीग्स, ठीक है। तो दे बेसिकली रिकमेंडेड अ डाइट विच इन्वॉल्व्स 400 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 100 ग्राम ऑफ ग्राउंडनट ऑयल इमल्शन, ठीक है। कि हमने 400 ग्राम ग्लूकोज लिया है और उसमें हमने 100 ग्राम ग्राउंडनट, किसको कहते हैं? मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली का जो ऑयल है ना, पीनट का जो ऑयल है, वो आपने 100 ग्राम लेना है, 400 ग्राम ग्लूकोज लेना है, ठीक है। और इस इमल्शन को हमने 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर देना है, ठीक है। और साथ में अगर तुम इसके
इसी इमल्शन में 1 लीटर में इफ़ वी ऐड 1 मल्टीविटामिन टैबलेट ऑल्सो, ठीक है, तो ये हम पेशेंट को थ्रू ड्रिप भी दे सकते हैं, थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी कंडीशन बेहतर है, पी सकता है तो वैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डाइट रिकमेंड की थी एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए। क्या डाइट है? 400 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्राउंडनट ऑयल डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर एंड प्लस इसमें ऐड हम कर सकते हैं 1 मल्टीविटामिन टैबलेट भी, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि 200 ग्राम ग्लूकोज भी आप दे सकते हो, ठीक है, तो 200 भी दे सकते हैं, 400 भी दे सकते हैं। दोनों डाइट्स जो है ना वो रिकमेंडेड थी इस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अगर उसकी कंडीशन बेहतर होती है तो वी कैन गिव द पेशेंट मिल्क, फ्रूट जूसेस, ठीक है, तो हम बाकी चीज़ें भी दे सकते हैं। ये है एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अदील पूछ रहा है कि सॉल्ट इनटेक क्यों कम होना चाहिए? बच्चे, सॉल्ट की अगर रिटेंशन हो जाए बॉडी में तो ओडीमा क्या होगा? बढ़ेगा ना, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा ओडीमा। तो ऑलरेडी नेफ्राइटिस के पेशेंट को ओडीमा है, क्लोराइड्स ब्लड टेस्ट हमने करवाए और क्लोराइड्स के लेवल भी बढ़े हुए हैं। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। तो क्लोराइड ऑलरेडी ज़्यादा है, ओडीमा भी हुआ है, ऐसे में सॉल्ट भी दे दोगे तो कंडीशन तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दैट्स वाई सॉल्ट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ द किडनी डिजीजेस। जनरली भी आपको जो है ना दिल जो गुर्दे के मरीज हैं ना उनको नमक वगैरह आपको कम कर दे देना है, ठीक है, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है सॉल्ट देने का, तो इस वजह से नुकसान है बल्कि, तो इस वजह से हम लो सॉल्ट डाइट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और जैसे कि नेफ्राइटिस 2 है, उसमें तो क्लोराइड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से हमने बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना कि बिल्कुल डाइट में आपने ऐड नहीं करना सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप फिश वगैरह या प्रोटीन डाइट रिच देते हो ना तो ऑलरेडी देयर आर डाइट्स विच इंक्लूड द सॉल्ट। अगर कभी मीट की कंपोजिशन देखो गोश्त की तो उसमें नेचुरली भी नमक है, फिश की कंपोजिशन देखो तो नेचुरली भी सॉल्ट है, तो खाने में नहीं भी ऐड करेंगे फिर भी बॉडी को सॉल्ट मिल ही जाना है। तो इस वजह से सॉल्ट से कंडीशन पेशेंट की खराब हो रही है, तो इस वजह से हमने मना कर देना, ठीक है अदील। अच्छा जी, अब है जी क्रॉनिक रीनल फेलियर। Chronic renal failure occurs in the glomerular nephritis and chronic pyelonephritis, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाता है कि जो आपका किडनी का एनाटॉमी तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि जो इसमें एक तो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बिल्कुल हैवीली डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स नहीं बल्कि आपकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो ट्यूब्यूल्स हैं दे आर हाईली डैमेज, ठीक है। तो अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आपका किडनी का मेन सिस्टम का कंपोनेंट है अगर वही डैमेज हो रहा है तो फिर आप बताओगे इसमें तो डाइट हमने बिल्कुल ही क्या करेंगे हम ऐसी डाइट को, यानी कि किडनीज तो आपकी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही हैं अब, ठीक है, उनके फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो गया, ख़राब हो गया है, बड़ा रिड्यूस हो गया फंक्शन। तो ऐसे में तो फिर हम प्रोटीन वगैरह डाइट बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स देखो कार्बोहाइड्रेट की एज सच वेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं है, ठीक है, खतरनाक वाली। देयर इज नो सच टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ज़्यादा भी खा लेते हो तो ग्लूकोज ही है ना कि वो लेवल बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में कोई, जैसे प्रोटीन का तो है कि यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं जो डेंजरस हैं, ठीक है, और वाटर इनसॉल्युबल भी हैं, ज़्यादा सॉल्युबल भी नहीं है पानी में। तो कार्बोहाइड्रेट का क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट कोई ऐसा टॉक्सिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, इस वजह से हमने देखा है कि 90% डिजीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स आर हैप्पीली अलाउड, खुशी से बिल्कुल अलाउ होते हैं कि आप ये खा सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसकी ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं, ठीक है, डाइट इन क्रॉनिक यूराटीमिया शुड बी लो इन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे यूराटीमिया अब क्या है कि आपकी बॉडी से प्रोटीन का लॉस, ठीक है, यूरिया जो है हमारे यूरिन में आ रहा है, ठीक है, यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट है? प्रोटीन्स का, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का।
तो इस वजह से हमने बिल्कुल प्रोटीन्स को ख़त्म कर देना है और डाइट से कम कर देना है, ठीक है। तो आप सीरियल्स दे रहे हो, मिल्क दे रहे हो, ठीक है, वेजिटेबल्स दे रहे हो, शुगर दे रहे हो, ठीक है, और हल्का सा एग वगैरह, यानी कि बहुत कम सी प्रोटीन, वही सबसे कम, यानी कि 30 ग्राम सिर्फ। ये जो प्रोटीन है ना 30 ग्राम, दैट इज़ ओनली रिकमेंडेड के पेशेंट जो है ना उसकी बॉडी उसकी अपनी प्रोटीन्स को यूटिलाइज ना कर ले फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स मींस 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज अलाउड, ठीक है। बाकी हम इस पेशेंट को जो है ना आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अलाउड एंड प्रोटीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द क्रॉनिक रीनल फेलियर। अच्छा देखो, लुब्ना बतूल, मेल्स और फीमेल्स में जो हम कैलोरीज कम कर रहे हैं ना, तो अगर किसी को कोई बीमारी नहीं भी है ना, जो नॉर्मल मेल और फीमेल भी है ना, उनकी भी किलो कैलोरीज कम है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मस्कुलर मास जो है वो मसल मास मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। मेल का एनर्जी लेवल हाई है, फीमेल्स का कम। इस वजह से नेचुरली भी नॉर्मली अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है फिर भी फीमेल्स को आप दे रहे हो 2200 किलो कैलोरीज या 2000 किलो कैलोरीज, और मेल्स को हम 200 किलो कैलोरीज ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 22 या 2400, यानी कि 200 का डिफरेंस है। नॉर्मल में भी कुछ बुक्स में 2400 है, कुछ में 2200 है, ठीक है। यानी कि अगर मेल्स की किलो कैलोरीज 2400 है नॉर्मल, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो फीमेल की किलो कैलोरीज 2200 होंगी, ठीक है। तो डिजीज में भी ऐसा ही है, जाहिर है जब नॉर्मली फर्क आ रहा है 200 किलो कैलोरीज का, तो डिजीजेस में भी फिर क्या है कि फ़र्क है कि आपने मेल्स की कैलोरीज और हैं, फीमेल्स की कैलोरीज और हैं, ठीक है। तो फीमेल्स की जो है वो हमेशा थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है जी। गॉट इट लुबना बतूल। अब जी एनूरिया, एनूरिया का मतलब क्या है? एनूरिया मतलब व्हेन देयर इज किडनी फेलियर एंड लिटिल और नो यूरिन हैज़ पास, जो मैंने शुरू में बताया था कि ऐसी डिजीज़ जिसमें आपका जो यूरिन आउटपुट है बहुत कम हो गया है, कि बॉडी से जो है जी वो आपका यूरिन जो है वो बिल्कुल पास आउट नहीं हो रहा। और देखो अगर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा होता, आपका यूरिन रुक जाए तो कितनी पेनफुल कंडीशन है। दिस इज द वेरी पेनफुल डिजीज ऑफ आउट ऑफ ऑल द किडनी डिजीजेस। जितनी भी किडनी की डिजीजेस हैं उसमें यूरिन का रुक जाना, यूरिन पास आउट ना होना, ये जो है ना सबसे ज़्यादा आई थिंक दिस इज द पेनफुल डिजीज। अब इसमें क्या है कि ज़ाहिर मेटाबॉलिक चेंजेस अकर इन द बॉडी विच इंक्लूड यूरेटीमिया, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। जाहिर है जब यूरिया आपका बहुत कम हो गया है, यूरिन निकलेगा तो देखो यूरिन से आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, कि उससे हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आ रही हैं। अगर देखो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका डैमेज या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका मतलब आपकी वेस्ट बॉडी में ही रहेंगी। तो इसी वजह से एनूरिया ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें बॉडी से जो है वाटर यानी कि यूरिन का जो आउटपुट है ना वो बड़ा ही कम हो जाता है। तो इसमें फिर क्या होगा कि आपका जो है सॉल्ट इम्बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम वगैरह की रिटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम की भी रिटेंशन हो जाएगी, यानी कि हाइपरकैलेमिया भी हो जाएगा। तो पोटेशियम लेवल भी बॉडी में बढ़ रहा है, सोडियम का भी बढ़ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, किडनी आपकी बिल्कुल काम नहीं कर रही, तभी तो वो यूरिन को बिल्कुल पास नहीं ना कर रही। किडनी इसका मतलब है कि डैमेज हुई है, तो आपका यूरिन आउटपुट जो है वो कम हुआ है ना। सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन ये है कि इफ आर्टिफिशियल किडनी इज अवेलेबल, एनी डोनर इज अवेलेबल, तो किडनी को ही रिप्लेस कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट इसका अल्टरनेटिव है डिजीज का। When modifying the diet, it must be noted that the patient is very ill. इस कंडीशन इस डिजीज़ में मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा पेनफुल है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका यूरिन आउटपुट जो है रुक जाए, ठीक है, यूरिन ना आए, तो देखो
बहुत ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस वजह से हमने इसको जो है यूरिन आउटपुट को जो है ना अगर कम हो जाए तो ये बड़ा पेनफुल है। तो इसके लिए क्या है कि हमने आर्टिफिशियल अगर किडनी मिल जाए तो इसका बेस्ट हाल है, ठीक है। और लेकिन ये है कि जब तक नहीं मिलती तब तक डाइट में क्या क्या चीज़ें हम करेंगे काम। अब इसमें पेशेंट को एनोरेक्सिया भी है, नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, ठीक है। यानी कि ज़ाहिर है वो खा भी नहीं रहा, यूरिन ही नहीं आ रहा तो खाएगा कैसे, बिल्कुल रुका हुआ है। आ तो रहा है लेकिन पास आउट नहीं हो रहा, ठीक है। वॉमिटिंग भी है, नोजिया भी है, एनोरेक्सिया भी है। तो इसमें क्या होगा कि आपने ऐसी, हमारा जो डाइट थेरेपी का मकसद है वो क्या है, वो ये है कि रिड्यूसिंग यूराटीमिया, कि यूरिन जो यूरिया का लॉस है वो जो है कम हो, ठीक है। सो रिड्यूसिंग यूराटीमिया, अवॉइडिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, रिड्यूसिंग द पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। पोटेशियम के लेवल बढ़ रहे हैं, ऐसी डाइट दे ही नहीं सकते पेशेंट को जिसमें पोटेशियम हो, जिसमें सोडियम हो। वाटर भी कम कर देना है, प्रोटीन्स भी कम कर देनी है, ठीक है। सिर्फ आपने पेशेंट को क्या दे सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने 100 से 200 ग्राम पेशेंट को देने हैं, ठीक है। और फैट्स हम इसलिए दे सकते हैं ताकि आपकी थोड़ी भी अगर खा लोगे तो ताकत मतलब कि आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। तो बॉडी को जो एक है ना, क्योंकि फैट्स ज़्यादा एनर्जी देती हैं, तो अगर आप कम भी ले लोगे तो आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी। दैट्स वाई हमने फैट इनटेक जो है ना उसको हमने इंक्रीज कर देना है, और कार्बोहाइड्रेट इनटेक तो इंक्रीज करना ही करना है। प्रोटीन बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। और डायूरेटिक्स, ठीक है, हम दे सकते हैं पेशेंट को। डायूरेटिक्स ऐसी कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं कि यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जी अ, अ, अब ना ऐसा है कि इसको हम मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ आफ्टर टेकिंग 10 मिनट्स ऑफ द ब्रेक, ठीक है। 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक के बाद मुकद्दस तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ, ठीक है। 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू।
We are back. BSN. So BSN, we are back. Are you able to listen me? Please reply so that we may start it. ओके गर्ल्स जी। तो क्वेश्चंस तुम लोगों के काफी आए हुए थे। जो तुम लोग क्या पूछ रहे थे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, मेरे ख्याल में मैंने रिकनेक्ट किया है। I got reconnected, so I'm unable to show the not. I'm not showing the questions of the Muqaddas what you were asking, and there was also a question why groundnut oil is given, because I already told you कि फैट्स की जो कैलोरीज हैं बेसिकली वो ज़्यादा होती हैं, मतलब कि आप कम भी खाओगे तो यू विल गेट द मोर कैलोरीज फ्रॉम द फैट्स। ठीक है, थोड़ा भी फैट ले गया तो कैलोरीज आपको ज़्यादा मिलेगी। दैट्स वाई हम फैट्स को रिकमेंडेड करते हैं किडनी डिजीजेस के पेशेंट्स में। ठीक है, तो फैट्स आर बेसिकली नॉट एज सच रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्ट करने का कोई एज सच फायदा नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि फैट्स के भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते किडनी डिजीजेस में। So major waste products are accumulated in our body in the renal failure or in the kidney diseases. They are the basically proteinous waste products. ठीक है, so anuria, which is a very painful situation, patient is very ill, patient is suffering from anorexia or vomiting. So इस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने यूरिया का जो कंटेंट है वो रिड्यूस करना है, सोडियम और वाटर रिटेंशन को अवॉइड करना है, एंड वी शुड रिड्यूस द पोटेशियम लेवल्स इन आवर ब्लड। ठीक है, तो पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो हमने कम करने, यानी कि ऐसी डाइट आपने नहीं लेनी जिसमें सोडियम हो, जिसमें पोटेशियम हो। ठीक है, और जिसकी वजह से यूरिया बॉडी को मिले। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी गिवन टू द पेशेंट, बट डेफिनेटली जो है कैलोरीज इसमें कम हो जाएंगी। ठीक है, फैट शुड बी एडेड टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ द कैलोरीज। सो प्रोटीन इज जनरली अवॉइडेड। और मैं बात करी थी कि डायूरेटिक्स हम दे सकते हैं, तो डायूरेटिक्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसको आप जब खाओ, यानी कि ऐसी मेडिसिन वगैरह जिसको आप खाओ तो आपको यूरिन ज़्यादा आए। ठीक है, तो हमने क्योंकि इसमें यूरिन बिल्कुल बंद है तो हम डायूरेटिक्स पेशेंट को, ट्रीटमेंट ये होगा कि डायूरेटिक्स हम पेशेंट्स को दें, एंड द फ्लूइड इनटेक मस्ट बी केयरफुली रेगुलेटेड। ठीक है, जो आप फ्लूइड इनटेक दे रहे हो ना वो बड़ी हमने मॉनिटर करना है, यानी कि उतना ही फ्लूइड देना है कि जिसके बगैर समझो बंदे का सर्वाइवल ही नहीं है। पहली डिजीजेस में तो हम 1000 से 1400 देते रहे हैं फ्लूइड, बट एनूरिया में देखो फ्लूइड कितना कम हो गया है। द डेली इनटेक ऑफ द फ्लूइड इज 500 to 700 ml, बस 500 से 700 ml हमने पेशेंट को बस देना है। ठीक है, और इट कैन बी इंक्रीज व्हेन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट गेट्स इम्प्रूव। ठीक है, जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है, सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट बेहतर हो रहे हैं, फिर हम जो है जी फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम इज अवॉइडेड, पहले बॉडी में बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, तो हम सोडियम पोटेशियम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है जी, तो जो एनीरिया है इसकी डाइट में हमने जो कैलोरी इनटेक है वो आपका कहाँ से पूरा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से और फैट्स से। ठीक है, तो ये हमने जी वाटर इंटेंशन क्यों रिड्यूस, वाटर इंटेंशन नहीं है, ये वाटर इनटेक है बेसिकली जी। किसका क्वेश्चन है ये, अक्सा नज़ीर। वाटर इनटेक इज नॉर्मली रिड्यूस्ड। हम कम कर रहे हैं कि
एनूरिया का मतलब क्या है, पहले ही बताया है कि एनूरिया ऐसी डिजीज है जिसमें यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना वो बिल्कुल नो और वेरी लिटिल यूरिन इज पास्ट, कि आपको यूरिन आ ही नहीं रहा, आपका पास आउट नहीं हो रहा, आया तो है यूरिन लेकिन पास आउट नहीं हो रहा। अब ऐसे में बताओ और पानी पी लोगी तो क्या पेनफुल कंडीशन ही होगी ना, कि यूरिन पास नहीं हो रहा और बॉडी में और पानी अगर उसमें पीते जाओ, प्रेशर बिल्डअप करते जाओ, तो ये तो वेरी पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। इस वजह से पानी हमने बिल्कुल उतना ही पीना है जिसके बगैर गुजारा ना हो। बस यही हमारा जो है ना मैनेजमेंट है हमारी डाइटरी, और साथ में डायूरेटिक्स के जो जिनसे यूरिन आ सके। A diet that is free from protein, sodium and potassium does not permit a wide choice of food। जाहिर है प्रोटीन भी नहीं उसने लेनी, सोडियम भी नहीं लेना, पोटेशियम भी नहीं लेना, तो बहुत लिमिटेड फूड्स हैं विच कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, एंड दे आर लिमिटेड टू द शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट फ्री बटर, कॉर्नफ्लोर and a few other foods. So we have the very limited choice of the food, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें डाइट में प्रोटीन भी नहीं चाहिए है, सोडियम पोटेशियम भी नहीं चाहिए है, तो बहुत कम फूड आइटम्स ग्रुप में बचते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि फ्रूट्स कैन बी गिवन, शुगर्स कैन बी गिवन। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ जो है विच कैन बी गिवन, ताकि कम से कम उसकी जो कैलोरी इनटेक है वो तो पूरी हो। ठीक है, अब ऑल नेसेसरी कैलोरीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिविंग दिस मिक्सचर बाय माउथ इन 5 to 6 फीडिंग्स। ठीक है, किस चीज का मिक्सचर? अ मिक्सचर ऑफ बटर, शुगर, स्टार्च एंड वाटर। सो जिस तरह हमारी पहली डाइट थी कि हमने ग्लूकोज और फैट्स की एमल्शन पेशेंट को दी थी। ठीक है, तो इसमें भी जो है मिक्सचर ऑफ द बटर, शुगर, स्टार्च एंड वाटर इज गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, तो दिन में 5-6 फीडिंग्स पर डे हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इस डिजीज़ में दे आर वेरी स्वेयर। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डेफिनेटली फॉर द पेशेंट टू एक्सेप्ट इट। डेफिनेटली पेशेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑलरेडी देखो जब हम बीमार होते हैं तो वही चीज़ें खाने को दिल करता है जो मन है। ठीक है, ये सबके साथ ऐसा ही है। तो जी ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, और इसके बाद जो है दैट इज़ ऑल दैट इज द यूरिनरी इन्फेक्शंस। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो हैं ये, और ये ज़्यादा जो है ना वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। तो a treatment of the cystitis and the pilatus is mainly by medicines and rest। ठीक है, जो cystitis मीन्स के जो यूरिनरी ट्रैक्ट के आपका जो है सिस्ट वगैरह बन जाती हैं, या जो इन्फेक्शन आपका जो है यूरिनरी ट्रैक्ट का। ठीक है, इसमें एक तो मेडिकेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, और दूसरा रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइट अलोन इज अ लिटिल वैल्यू, बट along with other treatment prescribed, the following points should not be less than 2500 ml per day। अच्छा जी, इसमें आपका फ्लूइड इनटेक जो है ना वो आपका ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज द किडनी डिजीज विच इन्वॉल्व्स द हाई फ्लूइड इनटेक। दिस इज द किडनी डिजीज विच इन्वॉल्व्स द वेरी हाई फ्लूइड इनटेक। ठीक है, तो हमने यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं इसमें जो फ्लूइड इनटेक है ना वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी हम अभी तक डिजीजेस पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड इनटेक बड़ा कम हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा ज्यादा होगा। तो दिन में कम से कम 2.5 लीटर तो पानी हमने लाजमी पीना है। फ्रूट्स में भी कोई कंसर्न ज़्यादा होता है, पर जी फ्रूट्स में निमरा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो आपका मीट वगैरह है दे आर प्रोटीनियस डाइट। ठीक है, गोश्त, मछली, अंडे। ठीक है, तो फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कोई भी फ्रूट्स एप्पल वगैरह दे सकते हो। हाँ, बनाना में पोटेशियम ज़्यादा है, हम बनाना नहीं दे सकते। ठीक है, पेशेंट को बाकी जो है ना फ्रूट्स जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, एप्पल इज वेरी गुड। ठीक है, वाटरमेलन इज वेरी गुड। सो दीज फ्रूट्स आर अलाउड टू द किडनी पेशेंट्स। उसमें ज़्यादा फ्रूट्स जो है ऐसा मना नहीं है। गावा इज द वेरी गुड फ्रूट। ठीक है, वी कैन गिव टू द पेशेंट। तो इजीली जो है ना हम ये फ्रूट्स पेशेंट को दे सकते हैं। अब जो हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस की जो हम बात करें ना, इसमें पानी का बड़ा रोल है। पानी आपने मैक्सिमम पीना है, यानी कि देखो 2.5 लीटर पानी डेली लाजमी, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं इसमें हमने
ज़ाहिर है ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो इसमें आपने इससे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट लेंगे ना, तो इससे आपको और ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स पे। तो इस वजह से हमने डाइट शुड बी वेरी लाइट, ठीक है, ब्लैंड। ब्लैंड मीन्स विच इज़ फ्री फ्रॉम स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ठीक है, मिर्च मसाला जिसमें बड़ा ही कम होगा। तो हमने कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस को बिल्कुल डिलीट कर देना है, ओमिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो रीनल सिस्टम है, आपका रीनल जो आपका ट्रैक्ट है, उस पे इरिटेशन कॉज करेंगे। इस वजह से हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो है ब्लैंड डाइट लेनी है, ठीक है, द डाइट विच इज फ्री फ्रॉम द condiments and spices. रीनल एंड वेसिकल कैलकुलाई, यानी कि कैलकुलाई का मतलब है स्टोन्स, चार्जिंग, ठीक है। रीनल एंड वेसिकल कैलकुलाई का मतलब है कि जो हमारी किडनी के स्टोन्स बन जाते हैं, उसकी हम अभी जी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। रीनल एंड वेसिकल कैलकुलाई, इसकी हम जी बात कर रहे हैं। तो आपके जो रीनल और जो स्टोन्स हैं बेसिकली, ये हमारे जो है जी किस चीज़ के बनते हैं, नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, ठीक है। और ये जो हैं आपके जो रीनल स्टोन्स हैं, ये आपके उसके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के बनते हैं। इसके अलावा जो आपके फॉस्फेट्स हैं बेसिकली, इसके बनते हैं, ठीक है। तो हमने जाहिर है कि डाइट में ऐसी चीज़ें हम रीनल स्टोन्स में नहीं लेंगे जिससे ये स्टोन्स बने, ठीक है जी। ये एक सेकंड, तो मुगलों का लिंक मेरे ख्याल में डैमेज तो नहीं हो रहा, जी जी। अच्छा जी, रोशना कंवल ने एक सवाल पूछा है, सिस्टाइटिस एंड प्लाइटिस जो है ये जी, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन है उसको हम कह रहे हैं सिस्टाइटिस एंड प्लाइटिस, यानी कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ना, उसका उसके जो पार्ट्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन, तो मोस्टली ये ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है। दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है यूज हो सकती हैं, सिस्टाइटिस एंड प्लाइटिस, ठीक है। दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी ना, सोजिश हो जाएगी, तो इसको हम कह रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, और ये फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वाटर इनटेक शुड बी वेरी हाई, ठीक है, ताकि आपके जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह वो रिमूव हो जाए। जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे उतना ये इन्फेक्शन जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो किडनी के स्टोन्स थे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के बनते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है। कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है निमरा, क्योंकि ऑक्सलेट, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हैं। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें नहीं खानी है। ये अभी आते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी है। अब एटियोलॉजी, यानी कि कॉज क्या हो सकता है किडनी स्टोन्स का। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स, ठीक है, कि किन किन चीज़ों की वजह से लोगों को ये किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, देखो, क्लाइमेट ऐसे इफेक्ट करता है कि इफ़ वी आर लिविंग इन वेरी वार्म क्लाइमेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म मुल्क है, तो क्या हो रहा है, बॉडी से स्वेटिंग, प्रेस्पिरेशन, पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन हो रही है, ठीक है। सॉल्वेंट आपका कम है और सल्यूट आपका ज़्यादा है। तो अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन हो रही है तो इसकी वजह से जो है आपको किडनी स्टोन्स जो हैं जी वो हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जी, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऐसा है, वही अगर सिविल इंजीनियर्स हैं, धूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऐसा है कि पानी कम पिया जा रहा है, गर्मी में धूप में काम कर रहे हो इन द फ्रंट ऑफ द सनलाइट, तो बॉडी में अगेन जो है वो कंसंट्रेशन हो रही है, ठीक है, सॉल्ट्स की, कैल्शियम ऑक्सलेट की, फॉस्फेट की, ठीक है। वाटर इंटेक, सॉल्वेंट कम है और सल्यूट जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है फिर भी स्टोन्स बन सकते हैं। फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, ये आपकी डाइटरी उस पर बड़ा लाइक और डिसलाइक पे बड़ा डिपेंड करते हैं, पर्सनल लाइक और डिसलाइक। चीज़ें ही ऐसी पसंद हैं कि जिसमें ऑक्सलेट है, जिसमें फॉस्फेट है, ठीक है, खा ही वो रहे हैं, मिक्स डाइट नहीं ले रहे, एक दो चीज़ों पे आप लोग अगर रिलाई कर रहे हो,
कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, कुछ लोग चाय बेतहाशा पी रहे हैं, गोश्त बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। अब चीजें तो आप खा रहे हो लेकिन उसके साथ में वाटर इनटेक जीरो है। तो देखो, अगर डाइटरी जो हैबिट्स है ना, ये एक फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इसके साथ अगर हम पानी का इंटेक अगर ज्यादा कर देना तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम गोश्त को ज्यादा खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खा ली, उसके साथ पानी कम पिया, तो क्या है कि वो ऑक्सलेट फॉस्फेट तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है कि जी इनहेरिटेड होते हैं, तो बिल्कुल इनहेरिटेड होते हैं। कोई अगर फादर फोर फादर में है तो यस, ये बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है, तो दिस कैन ऑल्सो बी हेरिडिटरी, ठीक है जी। जिनकी आवाज कट रही है प्लीज सिग्नल अपने रिस्टोर कर लो, ठीक है। अच्छा जी, क्लाइमेट। In warm climate, the urine volume is low and the urine is highly concentrated with यूरेट्स, ऑक्सलेट्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। जो भी बात मैंने पहले की है, निम्रा अपना कनेक्शन रीस्टोर कर लो जी। जिनको आवाज नहीं आ रही, मैं भी दोबारा अपना कनेक्शन देख लेती हूँ और तुम लोग भी जरा देख लो, ठीक है। जी गर्ल्स, आर यू एबल टू लिसन मी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? प्लीज गाइड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लाइमेट की जैसे मैंने बात की है, इन वार्म क्लाइमेट्स देखो, अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो यूरिन है ना वो बड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। उसमें आपकी जो है ना सॉल्ट, पानी ज़्यादा पीना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है किडनी स्टोन्स के लिए, आई विल एडवाइस कि वाटर इनटेक आपका हाई होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशंस की भी मैंने पहले भी बात की थी, तो उनमें भी ये है कि पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी, पानी होगा बॉडी में तो सॉल्ट्स डिसॉल्व होंगे ना, ठीक है। तो पानी में अगर सॉल्ट्स डिसॉल्व नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप की बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहे हैं सॉल्ट्स, ठीक है जी। लुबना बतूल, देयर इज अ क्वेश्चन दैट यंग एडल्ट्स में ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। रीजन खुद ही असेस कर लो कि वजह क्या है, जो इटियोलॉजी क्या है। सबसे पहली इटियोलॉजी तो आप की डाइटरी हैबिट्स हैं, चीज़ें वो खा रहे हैं, लाइक और डिसलाइक वही हैं जिनमें हमारे सॉल्ट्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ऑक्सलेट, फॉस्फेट्स प्लस वाटर इनटेक जो है हमारा बहुत कम है, उतना पीना है लेकिन हम, तो दैट्स वाई फिर क्या है कि बॉडी में सोल्ट, और कुछ लोगों की बॉडी नेचुरली जैसे हेरिडिटरी रीजन है कि ज्यादा प्रोन होती है कि उनमें सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी फैक्टर मैं कहूंगी कि देयर इज टेंडेंसी, कुछ लोगों में टेंडेंसी ज्यादा है कि उनकी बॉडी में सॉल्ट बन सके, ठीक है जी। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अगर पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स वगैरह हैं आपके जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसकी वजह से भी आपका स्टोन्स हो रहे हैं। फिर डाइटरी हैबिट्स मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम रिफाइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं ना, ठीक है ना। अब पहले क्या था कि आपने बिल्कुल चक्की का आटा लेना है, बिल्कुल अनछना, जिसको हम छानना भी आपने नहीं है। अब हम जितने रिफाइंड चीज़ों की तरफ आई जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हमने चीज़ें जो लेनी ना, होल सीरियल्स लेने हैं, हम होल सीरियल्स नहीं ले रहे ना, हम रिफाइंड की तरफ आ गए हैं, मैदा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिफाइंड चीज़ है, ठीक है। आटा वो वाला वाइट वाला इस्तेमाल करें, रिफाइंड है, वो हमने नहीं खाना है। हम जितना जो है ना ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करेंगे ना, ऑर्गेनिक, उतना हमें कम चांसेस हैं किडनी स्टोन्स होने के, ठीक है। इसके अलावा चाय, प्लीज टी को भी आप एक्सेसिव अगर लोगे तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं कहती हूँ यंग अडल्ट में चाय जो आप 4-4 5-5 कप और बड़ी स्ट्रॉन्ग पी रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो द फैक्टर। कॉफी, कोका बीन्स, ठीक है, ये सारी जो है ना चीजें आपके उसके बाइस बनती हैं किडनी स्टोन्स का जी। हेरिडिटरी रीजन भी है और इसके अलावा है अब डाइट क्या चाहिए,
किडनी स्टोन से आप बच कैसे सकते हो, डाइट थेरेपी हमारी क्या होगी। डाटा रिगार्डिंग द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंटेंट ऑफ द फूड इज गिवन। अब देखो नेक्स्ट पेज पे टेबल गिवन है जिसपे दिया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, जो कौन कौन चीज़ें हैं जो कि किडनी स्टोन्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमने ऐसी चीज़ें डाइट में नहीं लेनी, ठीक है। तो हम उस टेबल की तरफ ही मेरे ख्याल में जो चले जाते हैं, और प्लस वाटर इनटेक हमने ज़्यादा करना है। फिर हम गाउट पे आते हैं, पहले हम ये टेबल स्टडी कर लें। तो सबके सामने टेबल ये गिवन है ना, आपने फूड्स विच आर रिच इन कैल्शियम, फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स एंड प्यूरिन्स, ठीक है। कौन कौन से फूड हैं जो कि कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट्स और प्यूरिन्स रिच हैं। अब देखो लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम जरूरत से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो फिर किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर भी बन रहे हैं। इसके अलावा कोका, टी और मीट, फिश, एनिमल टिश्यू रीजन्स, ठीक है, जो दिल, गुर्दा, मगज, कलेजी, इस तरह की चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो फिर भी किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। तो अब तुम लोग सोचोगे बंदा खाए क्या, सारी चीज़ों से तो किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। तो ट्रीट, मेरा आंसर इसमें ये है कि खाएं लेकिन मॉडरेट खाएं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हमने जो है ना उतना ही खाना है कि जिसकी जो है ना हमें वो है, जितनी आपको जो है ना जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उतनी ही हमने बस चीज़ें लेनी है। तो हम जस्ट चेकिंग कि कितनी स्लाइड्स रह गई हैं बेसिकली, दैट्स वाई मैं सिर्फ इसको नेक्स्ट 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 कर रही हूँ, ठीक है क्लास। तो जी हम वापस आ जाते हैं जी ये किडनी स्टोन्स पे, कि जो टेबल था, द टेबल विच वी हैव बेसिकली, इस पे। तो जी हमने सारी चीज़ें लेनी है बट इन द लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट। जी बिल्कुल, टमाटोज का भी इस्तेमाल देखो अगर हम कम करें तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। कोई कहता है छिलका उतार दो, कोई कहता है सीड्स निकाल दो। तो जो बेस्ट थिंग है दैट इज के वी शुड बेसिकली नॉट टेक द प्रोडक्ट्स इन द ग्रेटर अमाउंट, ठीक है। हमने हर चीज़ जो है ना वो मॉडरेट अमाउंट में लेनी है, हमने ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेनी। इसी तरह सिर्फ हम बच सकते हैं किडनी स्टोन से। और वाटर इनटेक इंक्रीज करना है, ये बचने के लिए है। वाटर इनटेक जब हो गए हैं फिर तो डिपेंड करेगा कि पानी कितना पीना है स्टोन के साइज पे, ठीक है। अब जी लास्ट जल्दी से टॉपिक कवर कर लेते हैं विच इज गाउट, ठीक है। गाउट है जी, गाउट इज द एसेंशियल हैडिज्म, ठीक है। अब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, अब यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है, जितनी हमारी देखो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, इन सब का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है तो इसके जो क्रिस्टल्स है ना ये कार्टिलेज में और हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज में जो है ना वहाँ पे डेपोजिशन इनकी हो जाती है। जब ये जॉइंट्स में डेपोजिट कर जाते हैं तो देर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ द पेन एंड द स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पेनफुल कंडीशन। जो आपकी जॉइंट्स की स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है गाउट की वजह से, गेंटिया जिसको हम कहते हैं, जोड़ों का दर्द जिसमें बड़ा पेनफुल होता है। तो गाउट जो है जी ये भी एक पेनफुल कंडीशन है। अब ये यूरिक एसिड डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं गाउट की। Gout, which is caused by the abnormality of the uric acid metabolism, is called as primary gout, ठीक है। And the gout resulting from the excess uric acid production due to excessive breakdown of the cellular nuclei occurring in other diseases is secondary gout। मतलब ये कि अगर तो यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करने वाला कोई एंजाइम आपकी बॉडी में नेचुरली डेफिशिएंट है बाय बर्थ, आपकी बॉडी में ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि यूरिक एसिड साइकिल के जो एंजाइम्स हैं उनमें से कोई भी अगर एक एंजाइम डेफिशिएंट है तो इट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम द गाउट, ठीक है। और दूसरी वजह जो सेकेंडरी गाउट है उसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में जो जाहिर है आपके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो भी तो आपका जो डीएनए आरएनए है, जो आपका सेलुलर न्यूक्लिय है उसमें भी तो आपका नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है ना। अगर बॉडी में जो है सेलुलर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है,
किसी भी डिजीज की वजह से, जैसे ल्यूकीमिया है, एनीमिया है, हिमोलाइटिक एनीमिया जिसमें हमारी बॉडी में जैसे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, हिमोलाइसिस हो रही है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हो रही है तो इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी गाउट। ठीक है, तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाउट। इफ वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड का जो साइकिल है, जैसे यूरिया साइकिल है, इसी तरह से यूरिक एसिड अगर मेटाबॉलिज्म का कोई डिसऑर्डर है तो दिस इज प्राइमरी गाउट। और अगर जो है किसी डिजीज की वजह से बॉडी का अपना ये जो सेलुलर न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है तो दिस इज secondary gout. Uric acid metabolism in the normal subjects. The body derives the uric acid from two sources. बॉडी में यूरिक एसिड कहाँ से आएगा? एक तो एंडोजीनियस सोर्स के बॉडी के अंदर ही जो आपका सेलुलर डैमेज हो रहा है, और दूसरा एक्सोजीनियस सोर्स के बाहर से हम डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस रिच है। ठीक है, खाने पीने में ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें यूरिक एसिड जिनका एंड प्रोडक्ट बनेगा। Endogenous uric acid, proteins derived from the breakdown of the nucleoproteins. बॉडी में अगर जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन अगर हो रही है, ठीक है, ब्रेकडाउन से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यूक्लियोप्रोटीन्स जब ब्रेकडाउन होंगी तो हमें यूरिक एसिड उसकी एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, on a purine free diet about 300 to 600 milligram uric acid derived from the endogenous source, it is excreted in the urine of the normal adult. अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो हमारी बॉडी में 300 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड जो है ना वो डेली एक्सक्रीट हो रहा है। 300 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड हमारी बॉडी से नॉर्मल जो लोग हैं ना उनमें डेली निकल रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन में हमारे 300 से 600 मिलीग्राम 300 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड निकल रहा है। अगर किसी का डिफेक्टिव यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म है तो फिर क्या होगा? ये 300 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर जमा होना शुरू हो जाएगा कार्टिलेज में, ज्वाइंट्स में, और कॉज करेगा गाउट। अलीजा शौकत, अगर हेरिडिटरी है तो वो फिर आपका मतलब कि अगर उसमें बाय बर्थ ही है ना, ठीक है, वो प्राइमरी आपका गाउट ही है ना, प्राइमरी गाउट होगा अगर आपका हेरिडिटरी है तो, जेनेटिक है। अब जी एक्सोजीनियस यूरिक एसिड कि यू आर टेकिंग द डाइट विच इज रिच इन प्यूरिन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि मीट बहुत ज़्यादा है, फिश बहुत ज़्यादा खा रहे हो, और एनिमल टिश्यूज जैसे मैंने बताया था, ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन जो मीट होता है, दिल, गुर्दा, मगज, कलेजी, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बनेगा, और अगर साथ में पानी कम है, उतना निकल नहीं रहा बॉडी से, तो बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगा। ठीक है, द लेवल ऑफ द सीरम यूरिक एसिड, जो हमारे ब्लड के यूरिक एसिड के लेवल हैं, दैट इज 3 to 6 मिलीग्राम पर 100 ml। किसी ने पता नहीं अपना यूरिक एसिड कभी चेक करवाया कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर अपने प्लाज्मा में, ब्लड में जो यूरिक एसिड है ना वो नॉर्मल है 3 से 6 मिलीग्राम। याद रख लो, 300 से 600 मिलीग्राम यूरिन में डेली पास आउट हो रहा है, निकल रहा है, ताकि बॉडी में जमा ना हो सके। ठीक है, और 3 से 6 मिलीग्राम इसके ब्लड के लेवल्स हैं कि ब्लड में इतना यूरिक एसिड जो है ना वो होना चाहिए। अगर 6 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द गाउट। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हैं तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी ज्वाइंट्स की, जोड़ों का दर्द हो जाएगा। ठीक है, एरियो में दर्द होगा, यानी कि कार्टिलेज वगैरह में आपके ज्वाइंट्स में दर्द होगा, और ये बड़ा पेनफुल सी सिचुएशन होती है। इवन वॉकिंग में फिर बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, चलने फिरने में। द लेवल ऑफ द सीरम यूरिक एसिड इज हाई इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाउट। अब जिसको गाउट होगा, नॉर्मल वैल्यूज हैं 3 to 6 मिलीग्राम, जिसको गाउट हो जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 6 to 10 मिलीग्राम। ठीक है, 6 से 10 मिलीग्राम अगर किसी का यूरिक एसिड इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द गाउट। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है हाई की? कि इंक्रीज या तो प्रोडक्शन या तो बॉडी में बन बहुत रहा है यूरिक एसिड, और दूसरा ये है कि निकल नहीं रहा बॉडी से। ठीक है, एक्सक्रीशन उसकी नहीं हो रही। ठीक है, ये हम सिर्फ लुबना बतूल, सिर्फ आप यूरिक एसिड हम ये कर लेंगे ताकि चैप्टर खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। इसमें यूरिक एसिड वाला ही रह गया बस, और तो कुछ नहीं है। अब जी इंक्रीज प्रोडक्शन कब हो रही है? देयर इज एविडेंस दैट गाउट देयर इज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स इन द बॉडी, कि नेचुरली हमारी बॉडी में अगर प्यूरिन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, प्यूरिन ज़्यादा बनेगी तो ज़ाहिर है ब्रेक भी ज़्यादा होंगी ना, तो ब्रेक होंगी तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड जी वो जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई किडनी का डिसऑर्डर है तो फिर आपकी बॉडी से यूरिक एसिड निकल नहीं रहा, ठीक है। दिस एबनॉर्मेलिटी इन द किडनी अपीयर्स टू बी हेरिडिटरी, यानी कि जेनेटिकली अगर कोई ऐसा मसला है कि बॉडी से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बड़ी कम हो रही है, ठीक है, बॉडी में बन तो रहा है यूरिक एसिड लेकिन निकल नहीं रहा, तो अगर तो प्रोडक्शन ज्यादा है फिर भी गाउट हो सकता है, एक्सक्रीशन कम है फिर भी गाउट हो सकता है। तो देर आर बेसिकली टू कॉजेज ऑफ द इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स इन आवर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने की दो वजह हैं कि बार एक तो बन बहुत रहा है बॉडी में यूरिक एसिड, ठीक है, दूसरा निकल कम रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन कम हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ये दो वजह हो सकती हैं। अब डाइट क्या होगी, ठीक है, डाइट क्या देंगे पेशेंट को, जाहिर है यूरिक एसिड प्यूरिन और pyrimidines की वजह से बन रहा है ना, तो प्यूरिन वाली चीजें कम देनी है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड वाली यानी कि फिश मीट, ठीक है, गोश्त दालें भी ऐसे बंदों को बिल्कुल मना होती हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना यूरिक एसिड वाले खाने नहीं खाने जिसमें गोश्त है, मछली है और कुछ दालें वगैरह भी हैं, ये हम नहीं खाएंगे। कैलोरीज भी ज़ाहिर है ऐसे पेशेंट्स की कम हो जाएंगी, ठीक है। ओबीस पर्सन्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गाउट, जो लोग ऑलरेडी मोटे हैं उनमें क्योंकि ज़ाहिर है आपका सारा वेट आपके पाँव बर्दाश्त कर रहे हैं आपके, ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा ओबीस हैं उनमें भी गाउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी वेट शुड बी मेंटेन्ड एट द नॉर्मल लेवल। आपका यूरिक एसिड की जब डेपोजिशन हो जाएगी आपके जॉइंट्स में, उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, तो स्वेलिंग का जो वजन है वो फिर आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी और गाउट के अटैक्स से पेशेंट को बड़ी पेनफुल सी एक सिचुएशन फिर हो जाती है। तो हमने फिर इसमें क्या करना है कि हैवी मील्स भी नहीं देने पेशेंट को, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट की देखनी है। इसके अलावा प्रोटीन इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड, सिर्फ 50 से 60 मिलीग्राम ग्राम प्रोटीन हमने पेशेंट को देनी है, ठीक है। और ये प्रोटीन भी हमने ज़्यादा वही देनी है विच शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सीरियल और द मिल्क, ठीक है। ज़्यादा जो है ना आपने मीट की, फिश की और एनिमल टिश्यूज़ की जो प्रोटीन है वो हमने अवॉइड करनी है, ठीक है। हमने वो प्रोटीन पेशेंट को नहीं देनी और एक्सेसिव प्रोटीन भी हमने नहीं देनी, यानी कि लिमिटेड बस इतनी प्रोटीन हो देनी चाहिए पेशेंट को कि उसकी जो है ना वो बॉडी की प्रोटीन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ ना कर सके। इसके अलावा जी जो फैट्स हैं, अगर पेशेंट ओबीस है ज़ाहिर है बिल्कुल इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। फैट कंजप्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एज हाई फैट टेंड्स टू इंक्रीज डिक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। फैट्स भी हमने कम कर देने हैं क्योंकि फैट्स बॉडी में अगर ज़्यादा होंगे तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो फैट्स हम कम कर देंगे ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा बॉडी से निकल सके, ठीक है। तो फैट और यूरिक एसिड का क्या है जी लिंक, के फैट्स ज़्यादा हों तो यूरिक एसिड बॉडी से कम पास आउट होगा, इस वजह से हमने फैट्स को कम कर देना है, ठीक है। लो बस एक दो तुम लोगों की स्लाइड्स रह गई हैं, वो हम आज फिनिश कर ही लें बिकॉज वी हैव द टाइम, 20 मिनट्स अभी पड़े हैं। तो जी गाउट में क्या फिर बंदा खाए, तो गाउट में बंदा कार्बोहाइड्रेट्स खा सकता है इजिली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड्स हम इंक्रीज करेंगे, फ्लूइड जितने ज़्यादा लोगे ना, पानी जितना पियोगे, जूस जितने ज़्यादा पियोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बॉडी से निकल सके। तो वाटर इनटेक हम ज़्यादा कर देंगे। टी कॉफ़ी कोका में प्यूरिन्स होते हैं, बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। आपने बिवरेजेस यानी कि ये जो हम पेप्सी कोक मिरिंडा पीते हैं ना, ये बिल्कुल डाइट से ख़त्म कर दो तो किडनी डिजीज़ से भी क्या बाकी डिजीज़ से भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, ठीक है। तो हमने जी पानी जूस वगैरह ज़्यादा पीना है, हमने पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। तो हमने जो है ना ये बिवरेजेस भी जो है ना इसको हमने कम कर देना है। वैसे ले सकते हो क्योंकि इसमें जो प्यूरिन्स होती हैं ना वो यूरिक एसिड में चेंज तो नहीं होती, लेकिन ये है कि लिमिटेड ही लो, ना ही लो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा अल्कोहल्स जो हैं ये तो ज़ाहिर है हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गाउट के अटैक को मज़ीद मज़ीद ज़्यादा कर देता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगी अगर गाउट का अटैक होगा, क्या चीज़ हमने देनी चाहिए। अब जो है ना जब गाउट का अटैक होता है तो हमारे पहले 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उसमें पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है,
ठीक है, और पेशेंट को ज़्यादा हम फ्लूइड्स पे ही रखते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स पे। और इफ़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट गेट इम्प्रूव तो हम उसको पॉरेज, कस्टर्ड, मिल्क, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन गाउट के इनिशियल 2-3 दिनों में क्या है कि हमने पेशेंट को फ्लूइड डाइट और फिर सेमी सॉलिड डाइट, सॉफ्ट डाइट ही रिकमेंड करनी है। जूसेस एंड सूप्स, ब्रेड, कुक्ड सीरियल्स, बॉइल्ड एग, ठीक है, ये हम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गाउट में इंपॉर्टेंट है ना कि पानी, प्लीज़ पानी, वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी का जो इनटेक है ना, वाटर इनटेक, दैट शुड बी हाई। जितना ज़्यादा हाई होगा ना, उतना ज़्यादा चांस होगा कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन ना हो आपके कार्टिलेज में, आपके जॉइंट्स में। उस तरह से ही हम बच सकते हैं इस डिजीज से, गाउट से, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हम अल्कलीन मिक्सचर्स यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट वगैरह लेना, तो ये भी जो है ना इसमें यूरिक एसिड से एक्सक्रीशन में बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम जो है जी सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, सोडियम सिट्रेट वगैरह, इसके सैशे वगैरह मिलते हैं अक्सर मार्केट में, सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि यूरिक एसिड बॉडी से निकल सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा डाइट चार्ट्स आर गिवन, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि रटने की जरूरत नहीं है इनको। देखो जरूर कि डाइट चार्ट में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है कि गाउट के मरीज को हम क्या क्या चीजें देंगे। तो देखो डाइट चार्ट में तुम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दे सकते हो मरीज को, ठीक है ना। और अगर टी लिखनी है, चाय लिखनी है, तो प्लीज लाइट टी, वरना जूस लिख सकते हो, ठीक है ना, ऑरेंज जूस लिख सकते हो, कोई भी आप जूस वगैरह दे सकते हो। पेशेंट को फ्रूट्स दे सकते हो, सैलड्स दे सकते हो, लेकिन डाइट चार्ट में जूस ज़्यादा लिखो, ठीक है ना। या मिल्क लिख दो, फैट्स कम देनी है तो स्किम फ्री मिल्क लिख देंगे हम, ठीक है, इसके डाइट चार्ट में। अच्छा जी, अक्सा नज़ीर, देखो एक वीक में सिर्फ एक ही क्लास है, और क्लास एक वीक में आपकी एक ही है, तो हम इन टॉपिक्स को मतलब कवर कर लें तो बेहतर है। क्योंकि आपकी बात सही है कि एक चैप्टर में डिजीजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि पूरा हफ्ता है तुम लोगों के पास। अब कॉलेज का टाइम भी कम है, स्टडी टाइम भी 1 बजे तक है, 4 बजे तक नहीं है। पहले 4 बजे तक पढ़ते थे, 5 बजे घर जाते थे। अब 1 बजे के बाद फ्री हो, चलो रेस्ट करके, काफ़ी टाइम है जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस टाइम को हम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमने चीज़ें, हमें एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आ जानी, वी हैव टू रिवाइज इट, वी हैव टू रिव्यू द चैप्टर अगेन एंड अगेन, ठीक है। हमने इसकी रिवीजन भी करनी है। तो सबसे पहला तो अभी ये है कि अभी कोर्स ही आपका ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी तो हमारे स्टार्ट हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और भी सब्जेक्ट्स हैं तुम लोगों के, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हल्का कर दें, वैसे ही रमज़ान में थोड़ा कम ही हम कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में एक चैप्टर इजीली अगर कवर हो रहा है तो वाई डोंट वी कवर इट, फिर हमें कवर तो करना चाहिए। बट माय एम इज़ नॉट टू कवर द चैप्टर, बट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइज एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि चैप्टर ख़त्म हो, बल्कि ये कि तुम लोगों को समझ भी आए, ठीक है ना। तो इसको इसलिए मैं एडवाइस ये करती हूँ कि जाके पढ़ो, क्योंकि न्यूट्रिशन में एज सच इतना कोई like biochemistry which is very tough and difficult for you guys, so न्यूट्रिशन में ऐसा इतना, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। हालांकि बायोकेमिस्ट्री का तो ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्चर में, एक ही दिन में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये रूटीन की चीज़ें हैं, थोड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं, इस वजह से हमने की भी हैं। तो तुम लोगों ने जो है ना अब इसको रिव्यू करना है, ऐसा नहीं है कि रमज़ान में हमने पढ़ना ही नहीं है अब, ठीक है। तो पूरा महीना है, तो हमने इसको रिव्यू करना है। आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि इस चैप्टर को पढ़ो, किडनी डिजीज वाले चैप्टर को पढ़ो, इसमें फिर देखो कोई प्रॉब्लम है तो कल हमारा लेक्चर है जैसे, ठीक है, तो हम उसको अगर कोई चीज़ आज के लेक्चर की नहीं समझ आती तो पहले हम उसको डिस्कस कर लें,
नो प्रॉब्लम, नो इशू दैट इफ वी आर गोइंग टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री टुमारो, तो ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन उसमें डिस्कस नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर आप इसको मतलब कि पूरे चैप्टर को गो थ्रू करो, ठीक है, ताकि कोई चीज़ अगर समझ आने वाली है तो हम उसको समझ लें। तो कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम चलो इतना हो जितना तुम लोग इजीली एब्जॉर्ब भी कर सको, ठीक है। दैट इज द बेसिकली पर्पस के एब्जॉर्प्शन और जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द टू थिंग्स विच आर माय फोकस। तो ये किडनी डिजीजेज में वी हैव वाइड रेंज ऑफ द डिजीजेस जो आज हमने की हैं, और कोशिश तो की है कि तुम लोग जो है ना काफ़ी नेफ्राइटिस 1-2 डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सी डाइट देनी है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि क्लिनिकल से बड़ा रेलिवेंट है हमारा तो जो न्यूट्रिशन का है ना। यही तुम लोगों ने आगे पेशेंट्स, इन्हीं पेशेंट से वास्ता पड़ना है। कोई गुर्दे के होंगे, कोई रीनल फेलियर के होंगे, कोई किडनी स्टोन्स के होंगे, कोई लिवर के होंगे, तो इसलिए तो न्यूट्रिशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी टोटली टोटली क्लिनिकल है, ठीक है। तो रेलिवेंट बहुत ज़्यादा है आपकी प्रोफेशन से भी। तो जी कल हम इंशाल्लाह एंजाइम्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एंजाइम्स का चैप्टर कल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए जो है इट इज़ ओवर। इफ़ देयर एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अदील, लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू अदील। कोशिश यही होती है कि तुम लोगों को जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। टेबल्स जी, हिरा जफर ने सवाल पूछा, देखो टेबल्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, रट्टा लगाने को नहीं कहूंगी। जिनमें तो वैल्यूज लिखी है ना कि 200 ग्राम सीरियल लेने हैं, 400 ग्राम, वो तो ना करो। लेकिन ये जो डाइट चार्ट्स वाले हैं ना, इनको हम इस तरह से करेंगे कि देखो आप ये टेबल नहीं करना, टेबल नंबर 18.11 मैं कह रही हूँ ये नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जो 18.12 है ये हम करेंगे। इसमें अब ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो दिए हुए ना, तो तुम लोग एक ही करोगे बस, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई इतना कंसेप्ट नहीं है वेज और नॉन वेज का, इस वजह से हम एक ही डाइट चार्ट को लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, तो फिर डाइट चार्ट को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि यूरिक एसिड वाले डिजीज में फिश को, मीट को, ठीक है, गोश्त और दाल, फैट्स भी ज़्यादा नहीं देने, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, पॉरेज हो गया, फ्रूट हो गया, ये चीज़ें, लाइट सी टी होगी, ठीक है, ये बस पेशेंट को देनी है। तो ये तुम लोग फिर कुक्ड राइस हो गए, ठीक है, कोई लाइट से सैंडविचेस हो गए, बस ये अपने पेशेंट को देना है। तो उसमें भी हमने वेजिटेबल सैंडविचेस लिखेंगे, यानी कि ठीक है। वैसे चिकन वगैरह हम थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन जो आपका मीट है, रेड मीट, बिल्कुल वो मना होगा, ठीक है। तो पेशेंट को हमने प्रोटीन कम देनी है, फैट्स कम देने हैं, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देना है। तो डाइट चार्ट खुद ही तुम लोग बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़ की बहुत जल्दी तुम लोगों को, चलो क्लास नेक्स्ट भी तुम लोगों का लेक्चर होगा, तो मेरी तरफ से तो जो अब है जी, खुदा हाफिज़। सी यू टुमारो विद द बायोकेमिस्ट्री क्लास एंड वी विल स्टडी enzymes inshallah tomorrow. Till then, goodbye, khuda hafiz.